guys. कैसे हो आप सब? I hope everything is doing well. Everyone is doing well and everything is fine. अभी आप सोच रहे होगे कि अचानक से इतने दिनों के बाद ये vlog कैसे और where am I all of a sudden in middle of nowhere? Actually, I am on a solo trip now. Starting point is Hyderabad and my destination is Bhawanipatna. एक्चुअली मेरे व्लॉग करने का कुछ प्लान नहीं था, बट यू नो जैसे ही मैं भद्राचलम पहुंचा, आई गेन सम कॉन्फिडेंस इन द रोड एंड आई एम बिफोर टाइम ऑल्सो, सो आई थॉट कि लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद यू गाइज. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम हैदराबाद एट अराउंड 4 AM और आई टुक द NH-163. After taking NH-163 in Bhuvanagiri, we have to take a diversion in the right. जिसके बाद around 30 kilometers रास्ता बहुत ख़राब है. Like due to current low pressure rains, कुछ Google Map कुछ रास्ता डाइवर्सिफाई कर रहा है, कुछ रिडायरेक्ट कर रहा है. So ऐसा हुआ कि following the Google Maps मैं एक जंगल के थ्रू वाला रास्ता गया एंड कसम से मेरी फट गई थी वहाँ पे. एक तो अंधेरा एंड 10-10 किलोमीटर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग. सो एनीवे आई कवर्ड दैट एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी. सो फार इट इज़ गुड. अभी तक आई कंप्लीटेड अराउंड 300 किलोमीटर्स इन अराउंड 5 hours. आई स्टार्टेड फ्रॉम 4 and it's currently 9:30. I am taking a break in Bhadrachalam. After those 30-40 kilometers patch, when you reach महबूबाबाद के बाद आपका जो रास्ता है, इट्स कम्प्लीटली नेशनल हाईवे. समवेयर यू गेट द 4-lane रोड, समवेयर यू गेट द 2-lane रोड. इवन द 2-lane roads are very nice and the condition is very good. इस मतलब ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है बट नॉट दैट मच. बट यस, वी नीड टू बी केयरफुल एंड अगर हम केयरफुली ड्राइव करते हैं दैन रोड कंडीशन डज नॉट बॉदर एट ऑल. सो अभी मेरा प्लान है, लाइक इन दिस व्लॉग आई एम नॉट गोइंग टू पुट मच ऑफ द शॉर्ट्स, क्योंकि करेंटली मेरा GoPro एक्शन कैमरा कुछ भी मेरे पास नहीं है. आई ओनली हैव दिस वन मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग, दैट इज़ द फोन. और इसमें मैं जितना कर सकता हूँ आई विल डू इट. All because I want to share the experience. This is, by the way, this is my first solo trip and also the longest trip in my life. The target is to cover 750 kilometers in a single day, and I have already covered 300 kilometers in 5 hours. So I expect by end of the day I will be home. Anyway, so far I consider it is recommendable to follow this route for any, because Bhadrachalam is a religious place. Godavari, I just crossed Godavari and it is massive now, looking very huge. If you have not checked my Insta profile, link is in the description or it will be coming in the screen. Please go and check because all these updates and photographs are there in my Insta link. So let's say I will keep you posted, but currently after 300 kilometers I am a bit tired now and like I am feeling something anxious, after 300 kilometers I am a bit tired, not feeling sleepy but a bit tired, because as such I am traveling Lalvati, which is indeed a sports bike and ये कोई एडवेंचर टूरर तो है नहीं या फिर टूरिंग बाइक तो है नहीं. इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक स्पेशली, और मैंने इस पर कस्टमाइज वैसे भी किया हुआ है फॉर ट्रैक. सो राइडिंग ए ट्रैक ओरिएंटेड बाइक फॉर सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, पॉस्चर सब देखना पड़ता है. सो yeah, and one more thing I would like to share, when you are traveling for long distance, so it is not the speed which matters. All that matters is the consistency. आप जब आपके पास राइडिंग जैकेट है but you are putting full effort in your speed, focusing on speed, and you are getting fatigue issues after a lot of speeds, then it's better you keep your speed a bit minimal, reasonable, but consistent. All you need is to achieve a target at the end of the day. For example, 700 kilometers, 600. To achieve long targets or long routes, you need consistency, not speed. Speed is good. I'm not saying go slow, but take a reasonable speed and maintain its consistency rather than going to extra high speeds and like in very irregularity.
गाइस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ सुकमा। सुकमा एक जगह है, जब आप भद्राचलम से जगदलपुर जाओगे तो बीच में एक छोटा सा जगह आता है सुकमा। पॉपुलेटेड है, पॉश एरिया नहीं है, लेकिन या इट्स क्वाइट पॉपुलेटेड। एंड वहीं पे मैं एक पेट्रोल पंप के नीचे छाँव पे बैठ के लंच कर लिया। Now I am planning to head forth to Jagdalpur. Next break is on Jagdalpur, which is around 104 kilometers from here. I mean from right here where I am standing. I tried to vlog on the way when I was coming from Bhadrachalam to Sukma, but I didn't feel it safe. क्योंकि ऐसा जो कहते हैं कि that is a Maoist area. एंड डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर 5 to 10 किलोमीटर्स में एक CRPF कैंप है, हेविली आर्म कैंप। सो द सिक्योरिटी इज़ टेकन केयर बाय देम। बट थोड़ा रिमोट एरिया था एंड एज सच जंगल के अंदर था, इट इज़ विद इन द फॉरेस्ट रिजर्व द हाईवे। सो आई डेंट फील इट सेफ टू stop there and vlog, since I have got only this one camera, like only this phone to vlog. And I was coming in a speed of around, average speed of around 60 to 70. And मैं आया हूँ हैदराबाद से, तो अभी मैं जा रहा हूँ इस तरफ। ये इस तरफ है ना जगदलपुर? रास्ता ठीक है? So, वैसे ही लेट्स स्टार्ट। थोड़ा स्ट्रेचिंग व्रेचिंग करेंगे, मसल जो टाइट हुआ है उसको रिलैक्स करेंगे, देन विल स्टार्ट मूव। ओके, it's already been 11 hours. I have been riding continuously with gaps at around every 200 kilometers. And in 11 hours I have completed it's 520 kilometers as of now. Currently I am in Jagdalpur, Chhattisgarh. So I am here in a petrol station taking some rest and I will do some stretching over here. तो जब सुकमा से मैं शुरू किया इट वाज अराउंड 1 एंड जगदलपुर पहुँचते पहुँचते इट गॉट 3। अभी 3:15 3:10 हो रहा है, सो इट गॉट 3। द रीज़न इज़ दैट फर्स्ट 50% टोटल जो डिस्टेंस है वो है 140 किलोमीटर्स। सो 140 किलोमीटर्स से आपको, सॉरी नॉट 140, इट्स अराउंड 104 किलोमीटर्स। सो आउट ऑफ 104 किलोमीटर्स आपको 50% ऑफ जो रास्ता है बहुत ही बेकार मिलेगा, लाइक इट विल बी घटिया, पैची रोड है। इट्स नॉट पॉट होल्स बट बहुत पैची, लाइक अनइवन रोड्स हैं। और नेक्स्ट 50% के जो, लाइक नेक्स्ट 25% यू विल गेट घाट। वहाँ पे आप स्पीड अप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लाइक अराउंड 7 to 8 हेयरपिन्स मिले मुझे। सो ऑब्वियसली हेयरपिन्स एंड दैट टू अभी बारिश का मौसम है, रोड गीला था, सो आई हैड टू स्लो डाउन माई बाइक, तो वहाँ पे लेट हुआ। एंड नेक्स्ट जो लास्ट 25% है, यू विल गेट वेरी ऑसम रोड्स, वेरी गुड रोड। सो जो फर्स्ट 50% एंड सेकेंड 25% है, दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट व्हेन यू कम फ्रॉम सुकमा टू छत्तीसगढ़, सुकमा टू जगदलपुर। ना अभी यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा एट अराउंड हाफ एन आवर, डू सम स्ट्रेचिंग, पानी वानी पी के फ्रेश होके आई विल स्टार्ट टू अम्पानी, उड़ीसा। अम्पानी में नेक्स्ट स्टॉप, अम्पानी वुड बी अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, 100-120। सो देयर इज़ ए शिव टेम्पल, बूढ़ा राजा टेम्पल। हम वहाँ पे हॉल्ट करेंगे, इफ पॉसिबल दर्शन भी करेंगे अगर टाइम परमिट किया तो, एंड विल स्टार्ट from there to Bhawanipatna. So far I gained one experience that whenever you are traveling solo and you are mid of a forest, और देखिए ऐसा होता है कि जब आप जंगल के अंदर रहते हैं, डोंट एक्सपेक्ट हमेशा कि the road would be nice. In some forest the road is very fine. The roads are very fine and जो quality road मिलेगा that is equivalent to expressways. But at some part the roads would be very difficult to cover. वो potholes होंगे, patchy होगा, so you need to slow down there. But in mid of the forest, never stop. Wild animals हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है,
नो मैटर वॉट, कंट्रोल योर लाइक अगर वॉशरूम आ रहा है कंट्रोल इट, प्यास लग रहा है कंट्रोल इट, टिल यू गेट टू एनी लाइक पॉश एरिया. डोंट लाइक अवॉइड स्टॉपिंग विद इन द फॉरेस्ट. ये पहला चीज़. सेकेंड, फॉरेस्ट के अंदर आपको सिंगल लेन रोड मिलेगा. सिंगल रोड लेन में अगर एक ट्रक जा रहा है देन इट कवर्स द एंटायर विड्थ ऑफ द रोड. और जबकि वो घाट रहता है, घाट पे ट्रक्स के पिकअप इतने अच्छे नहीं होते. सो इन दैट केस डोंट ट्राई टू ओवरटेक इन ए हरी. आस्क लाइक honk your bike, blow the horn repeatedly till the truck driver gives you pass. क्योंकि जब आप रोड छोड़ के नीचे जाओगे the mud will be very slushy and आपका अगर बाइक में ऑफ रोडिंग टायर्स नहीं लगे, एज इन माई बाइक आई हैव मिशेलिन पायलट. मिशेलिन पायलट इज़ नॉट फॉर ऑफ रोडिंग, इट इज़ कम्प्लीटली रेस ओरिएंटेड, ट्रैक ओरिएंटेड. सो ऐसे टायर्स के साथ मैं स्लशी पाथ पे नहीं जा सकता. So avoid that. If you have track oriented tires or other than if you have off-roading tires, it's okay. But if you are driving a sports bike where you have the track oriented tires, then avoid going, ask for the pass. And as I told earlier also, be consistent in your ride. Don't push your vehicle to higher speeds. Rather than keep to a reasonable speed and be consistent. Be uniform, take breaks so that you avoid the fatigue of your body. Generally हेलमेट की वजह से आपका इस अपर शोल्डर पे पेन होता है. Okay, to avoid that, at every break, on every break, stretch your body, loosen your muscles, drink water properly. Okay. Next we will meet in Ampani. हॉल्ट. इसके बाद और कोई ब्रेक नहीं, डायरेक्ट भवानीपटना जाएंगे, घर जाएंगे. सो अम्पानी का एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ. ये जो मंदिर है इसको कहते हैं बूढ़ा राजा मंदिर. तो हर ट्रैवलर जो आता है, ये हैदराबाद का रास्ता है, हर कोई जो इस रास्ते से आता है पहली बार इस मंदिर पे माथा टेक के जाता है. रीज़न मुझे भी नहीं पता बट बहुत मानते हैं. अब अम्पानी है तो खूबसूरत बहुत. इस रास्ते में जो हैदराबाद से आया, ये घाट रास्ता है, 2 घाट मिले मुझे. आई एम वेरी सॉरी कि मैं वो रास्ता रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट वापस जाते वक्त मैं डेफिनेटली रिकॉर्ड करूँगा क्योंकि दैट इज़ वर्थ वॉचिंग. एंड आई डोंट नो व्हाई CMO उड़ीसा इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनफ प्रिविलेज फॉर दिस प्लेस इन लाइक एज ए कल्चरल हेरिटेज फॉर टूरिज़म एंड ऑल. अगर इसको प्रिजर्व करते तो बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनता, क्योंकि आई हैव चेक्ड इट. बहुत सही जगह है, जैसे कि ये मंदिर है, वहाँ कुछ पॉइंट्स थे फॉरेस्ट के अंदर, वो भी बहुत अच्छे हैं. 2-3 वाटरफॉल्स हैं यहाँ, और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ. सो दिस इज़ द वे विच आई केम फ्रॉम Hyderabad, and this side if you go, here is Bhawanipatna. This is my final stop. As I told you, this is the Budha Raja Mandir, and over